जब मैं MBBS कर रहा था during internship period when I used to be posted in different departments. When I was posted in pediatrics department for about 3 months, when we used to see the smiles on the parents' faces and we used to see the child getting better and used to go home, especially from the ICUs, from the sick units. That was priceless satisfaction and gratification, I would say. So then that was the moment I said, नो बॉस, मेरे को अभी डील करना है तो बच्चों के साथ डील करना है. बच्चों को हैंडल करना कोई रिटर्न रूल नहीं है, कोई किताब नहीं है. इट्स अ चैलेंज, इट्स अ यूनिक चैलेंज एवरीबॉडी फेसेस. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. सो यू चेंज योरसेल्फ, योर चिल्ड्रंस फ्यूचर विल बी ब्यूटीफुल. Welcome to this Instagram live session. Thank you so much. Thank you for having me on your show. Thank you so much, sir. So sir, ऑडियंस हमारे साथ जुड़ चुकी है, so मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं. Hi, hello everyone. It's indeed a pleasure to be here on this platform and to talk something, to share something which I know a little bit about. My name is Dr. Syed Mujahid Hussain. I'm a consultant pediatrician practicing in Bangalore by name Goodwill Children's Clinic. Well, I've been practicing for the past 10 years and pediatrics is my passion and I love kids and I love to interact with them. और मैं क्या कहूँ, आप पूछिए जो भी पूछना है, I'll be all the more happy to answer. Okay, so first of all, I would like to ask you, what attracts you towards this passion? Okay, that's a very interesting question. I have to go back to 15 years ago when I finished my MBBS and things like that. See, जब मैं MBBS कर रहा था, during internship period when I used to be posted in different departments, we get posted, right? So one of the departments was general physicians department, general medicine department, where we used to handle adult patients, we used to check them and all that. So in that process, I used to feel that somehow I am getting judgmental when I'm treating these grown-up people, right? I'm like, in my background of my mind, कुछ चल रहा है कि okay, this guy must have hurt himself ignorantly. He's very rude. Maybe he's very arrogant. Maybe he's a khadoos type. Maybe he's blah, 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 XYZ, right? So I was thinking, oh my God, I should not be thinking, as a doctor, I should not be thinking these things. I should be completely unbiased. I should be extremely transparent and, equality of treatment hona chahiye. Then when I was posted in pediatrics department for about 3 months, then I could see totally, the paradigm shift in my thought process. I would say every child has same, irrespective of he's coming from a lower socioeconomic background or he's coming from an affluent family or from a rich family. A child is a child is a child. आपका बच्चा आपको प्यारा है, मेरा बच्चा मेरे को प्यारा है. So when we used to see the smiles on the parents' faces and we used to see the child getting better and used to go home, especially from the ICUs, from the sick units, that was priceless satisfaction and gratification, I would say. So then that was the moment I said, no boss, मेरे को अभी डील करना है तो बच्चों के साथ डील करना है. I want to see those smiles. ओके, सो अभी तक के जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस्ड हैं आप, तो सब मतलब कितना मुश्किल रहता है बच्चों को हैंडल करना या किस तरीके से आप करते हैं? वाओ, बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है ये आई थिंक पेरेंट्स भी ज्यादा बताएंगे हमसे ज्यादा. बट वेल, बच्चों को हैंडल करना कोई रिटर्न रूल नहीं है, कोई किताब नहीं है. इट्स अ चैलेंज, इट्स अ यूनिक चैलेंज एवरीबॉडी फेसेस. बट एज अ पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, जैसे हम ट्रीट करते हैं, पहली चीज ये होती है कि यू हैव टू विन देयर ट्रस्ट. You have to somehow win their trust and get them into comfort zone. क्योंकि जैसे बच्चा आपके पास आता है, किसी स्ट्रेंजर के पास आता है, he is conscious, he is in a shell, right? He doesn't want to open up. He is like, okay, ये कौन है? Already parental training मिली हुई होती है कि stranger से बात मत करो, don't accept things from strangers, don't go near strangers and all that. So trust को जीतना सबसे पहली चीज होती है. And they love people who are very friendly and talkative and interact with them like in a childish manner. तो ये आपको थोड़ा बनना है. जितना आप सीरियस खड़ूस रहोगे उतना you'll chase away the kids, right? तो ये चीजें जरूरी है. ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बच्चे कितना खुल पाते हैं और आप कितने अच्छे से हैंडल करते हैं उनको? Well, मैं खुद की तारीफ करना नहीं चाहूंगा, but well, I have been getting a lot of responses from parents. बोलते हैं मुझको directly कि सर वो आप ही के पास आता है, he wants to come to you. हम जब भी आप नहीं होते, we go to some other doctor. Of course, this happens with many doctors. उनके एक फैन क्लब बन जाता है बच्चों को लेके, डॉक्टर्स को लेके. तो many parents tell me that सर हम चंडीगढ़ में थे, हम केरला में थे, हम
Chennai में थे, he was not at all comfortable with the doctor. The way you interact with him, the way you make him comfortable, the way you deal with him, he was extremely happy. So ये responses मिलता है, and that is like a driving force for us to do better, to do more, to get into that friendly zone more. ओके सो अभी हमारे साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस में बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हैं और बीइंग अ डॉक्टर अभी जो हमारे बच्चों की सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है इन दिनों में, जैसे वेदर चेंज होता है, वायरल जो है वो अभी शुरू हो चुका है बड़ों को बच्चों को, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि कम्युनिकेबल है और बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इससे परेशान रहते हैं। तो कुछ सजेशन और टिप्स उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी वायरल से थोड़े इम्पैक्टेड हैं। First and foremost, I believe in education is more important of the society than medication of the society. I strongly believe in this concept कि society को educate करना जरूरी है। बहुत सारे अफवाहें, बहुत सारे गलतफहमियां, बहुत सारे unnecessary WhatsApp forwards, बहुत सारे rumors ने लोगों का system हिलाया है than the disease itself. अभी for the past few months, especially in Bangalore, हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड कॉफ फीवर बढ़ रहा है। हर 15 दिन में सेम चाइल्ड कम्स बैक टू अस विद कोल्ड एंड कॉफ। देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो स्कूल्स खुल चुके हैं, दूसरे ऑफिसर्स, जनरल यातायात, लोगों की ट्रैफिक बढ़ गई है, कम्युनिकेशन ट्रैवल से सब बढ़ चुका है। सो इसके रीजन से क्रॉस इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज इन्फेक्शंस, लेट मी टेल यू, probably about 85-90% of these infections are self-limiting कहते हैं इनको, मतलब वो 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं रुक रहा है। हाँ, लेकिन 10 दिन 15 दिन में दोबारा जरूर आ रहा है, बट हम हार्डली कोई ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, हम हार्डली कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। दे आर वेरी सेल्फ-लिमिटिंग। एंड बहुत पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर मेरे बच्चे की इम्यूनिटी लो तो नहीं है, सर बार बार बीमार पड़ रहा है। इम्यूनिटी का सवाल बहुत फेमस हो गया अभी इम्यूनिटी को लेके। सो लेट मी टेल यू समथिंग, इम्यूनिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। इम्यूनिटी लो होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका इम्यूनिटी लो है, आपके सेल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कहते हैं लो है, सिंपल सी सर्दी आपकी निमोनिया में बदल जाएगी, सिंपल सा लूज मोशन हमेशा टाइफाइड में बदल जाएगा। बेसिकली जैसे डिफेंस सिस्टम वीक हो गया तो छोटा वायरस आया और पूरे हमला कर दिया, ये होता है इम्यूनिटी लॉस से। तो ये सब इम्यूनिटी का हिस्सा नहीं है, सीजनल है। हाँ, कुछ बच्चों की रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है, इन द सेंस दोज चिल्ड्रन आर मोर वल्नरेबल टू फॉल, गेट कोल्ड एंड कॉफ इजीली बिकॉज उनका एलर्जिक कोल्ड, सीजनल कोल्ड, सेंसिटिविटी रहता है। ऐसे बच्चों को हम कुछ नेजल स्प्रे देते हैं, कुछ नेबुलाइजेशंस, कुछ इनहेलर्स इफ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को मैं सिर्फ काउंसलिंग कर रहा हूं, मैं मना कर रहा हूँ ब्लड टेस्ट करवाने से, मैं मना कर रहा हूँ हॉस्पिटलाइज करने से, क्योंकि कई पेरेंट्स बोलते हैं सर ये ब्लड टेस्ट कर लो, एक्सरे कर लो, सीटी कर लो, देख लो सर, कुछ भी कर लो, पता लगाओ सर क्या हो रहा है, हम परेशान हो चुके हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दिस पास्ट फ्यू मंथ्स हम काउंसलिंग ज्यादा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कम कर रहे हैं। ओके, तो सर इस जो वायरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप होम रेमेडीज के लिए भी कुछ उनको पेरेंट्स को इसके लिए नॉलेज देते हैं कि आप घर पे भी बच्चों का काफी सारी चीजों को लेके इलाज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली घर पहला इलाज घर पे ही होता है। इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, घर पे ही पहले जो भी हल्दी वाला दूध है, ये है, हजार चीजें हैं। एनीवे मैं साइंटिफिक रीजंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे बच्चा कुछ भी छोटी मोटी सर्दी वर्दी होती है, हम पहले यही कहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट 3 days मिनिमम ऑब्जर्व हिम, डोंट रश हिम टू द हॉस्पिटल, यार कुछ दवाई ववाई देना या जो भी मत करो यार, क्योंकि जैसे हमारा अगर बचपन देखें, मोस्ट ऑफ अस वी हैव ग्रोन अप विद रनिंग नोज एंड स्टफी नोज फॉर मंथ्स टुगेदर। ऐसे कोई पैनिक नहीं होते थे। अब ये कोविड के बाद एंड इवन कोविड से थोड़ा पहले वर्किंग पेरेंट्स में इतना गूगल का जो कॉन्सेप्ट आ गया है, एवरीथिंग दे पुट अप ऑन द इंटरनेट, एनी सिम्टम्स, तो और पैनिक बढ़ रहा है। तो घर के हिसाब से देखा जाए तो सिंपल स्टीम दीजिए, कुछ जैसे आपने बेसिकली वार्म लिक्विड दीजिए, अवॉइड रेफ्रिजरेटेड थिंग्स, जो फ्रिज में रखी हुई चीज को अवॉइड कीजिए। अदरवाइज नॉर्मली घर के खाने सब ऑफर कर सकते हैं। कोई भी आपके अगर छोटे मोटे रेमेडीज हैं जो बच्चों को हार्म ना करें, जैसे कुछ 3 महीने के 2 महीने के बच्चों को जबरदस्ती वो खिलाया, ये खिलाया, अजवाइन या गुत्थी पता नहीं क्या क्या, दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अप टू 6 months ऑफ एज। सो बिसाइड्स दैट छोटे मोटे ग्रोन अप किड्स के लिए आप कुछ भी छोटा मोटा घर का दीजिए, हल्दी वल्दी वाला, नॉट एन इशू। 3 दिन से ज्यादा सिम्टम्स हैं तो टेक वन ओपिनियन फ्रॉम योर लोकल डॉक्टर। Okay, that's great.
सो आपकी कुछ इंस्टा रील्स पे मैंने ये चीज देखी थी कि वैक्सीनेशन जब आप करते हैं बेसिकली तो बच्चे बिल्कुल भी रोते नहीं है और एकदम स्मार्टली आप वैक्सीनेट करते हैं, तो उसका क्या मतलब, ये ट्रिक्स कैसे आपने लाइक कैसे स्टार्ट? वो हमारा चार्म है, वो उसका कुछ नहीं है। ओके, जस्ट जोकिंग। वेल सी, जैसे मैंने बताया, ये ऐसा नहीं है कि मेरे वैक्सीन से बच्चे रोते नहीं हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अबाउट 50%, मोर देन 50% किड्स डू क्राई, बट दिस रेस्ट ऑफ द 50% बच्चे जो रोते नहीं हैं, I see in the past 10-15 years in my experience we study the psychology of the child. हम जैसे बच्चा अंदर आता है हमको 30-40% उसकी साइकोलॉजी समझ जाते हैं। जैसे आके बैठता है, वी ट्राई टू इंटरेक्ट, वो कितना क्लोज्ड है, कितना ओपन है, कैसा नेचर है, वी ट्राई टू स्टार्ट एनालाइजिंग हिज बॉडी लैंग्वेज। उस हिसाब से मेरा अप्रोच होता है। जो बहुत कोल्ड बच्चा है तो उस हिसाब से अप्रोच, बहुत ही ओपन चिल बिंदास बच्चा है तो आई अप्रोच अकॉर्डिंगली। सो ये चीजें बहुत, क्योंकि पेन यहाँ नहीं होता है, पेन यहाँ होता है। आई ऑलवेज टेल दिस, पेन इज हियर। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ऐसे 10-15% बच्चे हैं जो हमारे क्लिनिक पे आते हैं, जैसे मेरी मेन डोर से एंट्री किया उनका रोना शुरू हो जाता है, और वो तब तक रोते हैं जब तक वो बेड पे आ जाते हैं और बाहर नहीं निकल जाते। सो इस दौरान मेरा वैक्सीनेशन हो भी चुका होता है, उनको पता भी नहीं चला होता, बट दे बी कॉन्स्टेंटली क्राइंग क्राइंग क्राइंग, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस उनको वो कर रहा है। तो इसीलिए कई बार हम, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, डिस्ट्रैक्शन इज द की। बैठे बात किए, उसको कुछ डिस्ट्रैक्ट किया, कुछ ऐसे सवाल पूछो कि वो सोच में लग जाए कि हाँ वो कौन है मेरा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा मैं क्या खाया था, अच्छा पापा का नाम, अच्छा स्कूल। उसी दौरान आई फिनिश दैट थिंग वेरी क्विकली। तो उसमें क्या है, वो पेन का रिस्पॉन्स ब्रेन तक पहुंचने से पहले बच्चे को मैंने हंसा के उठा दिया। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, ये कोई ग्रेट जादू वादू नहीं। इट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव डेवलप्ड, एंड एवरीबॉडी हैज देयर ओन यूनिक स्किल। तो उसके काफी ज्यादा लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पांस मिल रहा है मेरे को। वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 1.5 मिलियन व्यूज इन द पास्ट जस्ट 1 वीक। सो आई मीन that's an honor and the respect I've been receiving. So otherwise कोई ट्रिक नहीं है, it's pure love and passion for my work. So हो जाता है बस। Yes, exactly. So जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, खासकर मेडिकल के, who wants to be pediatrician, तो मैं चाहूंगी कि उनको आप कोई सजेशन और टिप्स जरूर दें। Well, I've been receiving lot of messages from these aspiring pediatricians and जो MBBS कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, कि सर मुझे भी पीडियाट्रिशियन बनना है, आपकी तरफ बनना है वगैरह वगैरह। मैं बोला सी, आप पीडियाट्रिशियन बनो, ऑर्थोपेडिशियन बनो, फिजिशियन बनो, whatever you want to choose first wisely। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये आपके फैमिली लाइफ पार्टनर होता है, आपके हस्बैंड या वाइफ की तरह होता है। क्योंकि आपको जिंदगी में यू हैव टू बी विद द सब्जेक्ट, यू हैव टू चूज वेरी केयरफुली, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पीडियाट्रिशियन बनना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रख लीजिए, समझ जाइए कि एक्सेप्ट कर लीजिए, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पेशेंट। क्योंकि एक रोता हुआ बच्चा 6-8 महीने का अंदर आएगा, वो रोते हुए ही उसकी माँ सवाल पूछेगी, पूरा माहौल एक टेंस का बन जाएगा। यू हैव टू स्टे काम and you have to examine the child while he is crying, and you have to answer the parent. You can't get stressed out, oh my god ये सुन नहीं सकता मैं, ये रोना धोना, दिन में 10 बच्चे रोते हैं, नहीं, वो नहीं करना है। तीसरी चीज, ये एक गट फीलिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं है प्रॉब्लम। वेटनरी डॉक्टर्स एंड हम पीडियाट्रिशियन थोड़े बहुत सिमिलर हैं, क्योंकि वो भी बेचारे नामासूम जानवरों से डील करते हैं, तो बच्चे बोल नहीं सकते हैं। So we have to have that gut feeling and instinct sometimes to diagnose. Of course, besides the knowledge what you have, you also must develop the gut feeling. वो तो eventually आएगा। But otherwise मेरा advice यही है कि whatever आपको बनना है, think about it, spend some time in that particular department, understand the good, bads and positive negatives of that, then take it on. Yeah, that's great, sir. So, sir, जाते जाते मैं चाहूंगी कि ऑडियंस को आप अगर कोई मैसेज देना चाहें, प्लीज। वेल, मैसेजेस तो बहुत हैं, मैं बस इतना कहूंगा कि स्ट्रेस इज द किलर। नेदर टेक स्ट्रेस नॉर गिव स्ट्रेस टू योर किड्स। एवरी किड विल हैव हिज और हर ओन ब्यूटीफुल फ्यूचर। क्योंकि टुडे पीपल हु हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, जो सक्सेस के मुकाम पे पहुंचे हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे पहुंचे, उनका भी पास देखा जाए तो वेरी वेरी स्ट्रगलिंग वो सब था। तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल मत बनाइए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक दूसरे के साथ एज पेरेंट्स, हाउ यू टॉकिंग टू ईच अदर, आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं अपने साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वही उधर कॉपी होगा।
आप बोलोगे कि गाली मत दो बेटा, आप बोलोगे कि रूडली बात मत करो, आप अपने मौसा जी से, मौसी जी से, सास से, मदर से आप रूडली बात कर रहे हो, so that will be replicated automatically. So my message is actions speak louder than words. So you change yourself, your children's future will be beautiful. That's great. That's great. Thank you so much, sir, for joining this Instagram live session, and thank you so much for sharing your experience. Absolutely. Thank you so much, Take One Digital, for having me on the platform. It's indeed a pleasure. Thank you so much, sir. Thank you.